Hey, welcome to Journey of a Joke. My name is Abish Matthew. Right now, we're with Mr. Bussy. How are you doing? Do you want me to call you by your entire name? Anubhav Singh Bussy? Just Bussy. कोई बुलाता है आपको? अनुभव सिंह बसी पूरा मुझे स्टेज पे कोई बुलाने की कोशिश करता है तो हमेशा कुछ ना कुछ गलत हो जाता है तो everybody बस्सी. So how long have you been doing stand-up for? When did you first go up on stage? 20th November 2017. Okay, wow. It seems like a relationship. 28th November 2017. Yeah. Where was this? Canvas Laugh Club Gurgaon. Today's set that we're going to be discussing is about a set called Cheating, जो आपने रिलीज की थी 24th April 2018. ये आप मतलब what is this? That you must be great at a relationship. मतलब first kiss anniversary याद होगा आपको, first holding hand anniversary. मैं 8 साल से सिंगल हूँ क्योंकि मैं सारा टाइम यहीं पे लगा रहा हूँ. Not all Hindi comedians are single. If you want to really figure that out, and I say it this way because what is this? What the? Okay, anyway, you know what? I'm not gonna get into your relationship thing. I want to talk to you about this set, the cheating set that you uploaded, and it's got some 39 million views. वो भी याद होगा? 32. 32. Inflate करके बोल दिया. अभी हो जाएगा. By the time this comes out, it'll be 39 million views. Who knows if it goes further? Like I've broken your entire set down from पहले opening joke, फिर intro आता है, फिर you go into an observational bit, which is an introduction bit about you, Meerut and Jat and a lawyer. उसके बाद you go into the anecdote about cheating. So इस एक set में you get a one-liner set, you get an observational bit. इसके बाद एक पूरी story which is not relatable because it's an anecdote in itself. पहले तो मैं कॉलेज पहुंचा, मुझे गांजा मिल गया. मैंने फूका, सेमेस्टर खत्म हो गया. वो बहुत सही चीज है. मैंने 6 महीने इतना फूका ना, 2 बार तो मैं शिव जी के सपने में आ गया. Now, this opening joke that comes obviously is a part of a middle set, right? It's a very smart thing to do. Did your editor tell you to पहले आप top load करो of the best jokes या फिर ये आपने कहीं और से देखा, आपने बोला कि this is the best way to put out? राहुल दुआ की वीडियो में देखा था. मैं और राहुल हर चीज डिस्कस करते हैं अबाउट स्टैंड अप एवरी डे. शोज वोज एवरी डे. तो मैंने उससे बोला कि ये मेरी वीडियो है, इसमें से क्या निकाल सकते हैं हम. सो हमें यही जोक बेस्ट लगा कि ये अगर हम इस जोक को निकालें तो ये जोक इंडिविजुअली अपने आप में एक जोक है जो कंप्लीट हो रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं है सेट से. Correct. सो हमने डिसाइड किया ये वाला हम स्टार्टिंग में रखेंगे. अगर कोई इसे सुन ले और उसे फनी लगे तो वो पूरा सुन ले शायद. So I rate jokes on A and double A L M X and Y and question mark. These are the ratings. इसके अंदर से जो शिव जी के सपने में ही मैं आ गया is a double A joke. पहला वाला जोक जो है गांजा इतना मैंने फूका कि सेमेस्टर खत्म, which is hilarious. It's a good standard one liner. उसके बाद मैं इतना फूका कि 2 बार तो शिव जी के सपने में आ गया. This is a classic escalation joke, which is शिव जी मेरे सपने में आ गए would have been a milder laugh. While you were writing this, was there any other permutation, combination? Because this is the strongest joke as far as the crux is concerned. Was there कोई और standard था इसमें? I used to do 2 sets. दोनों सेट्स की स्टार्टिंग नहीं थी मेरे पास. हाँ. ठीक है. नहीं थी. Okay. मेरा पहले दिन से एक चीज रही है कि whenever I'm going on stage, I have to get a laugh in first 30 seconds. So that I can establish myself that I'm funny. मुझे प्लीज नेक्स्ट 6 मिनट सुन लेना. मैं बहुत दूर से मेट्रो से आया हूँ, मुझे अभी 2 ओपन माइक में और जाना है. ठीक है, मैं याद करता हुआ आया हूँ तो मुझे प्लीज जाना. ठीक है. फर्स्ट जोक जो महीप सर को बहुत पसंद था, वो जोक अल्कोहल के ऊपर था. कि हम कॉलेज में बहुत शराब पीते थे. वो ओल्ड मॉन्क के ऊपर था कि एक बार हमने इतनी शराब पी ली थी कि ओल्ड मॉन्क हमारे रूम में आ गया था. उसने बोला था कि बेटा आपको बॉटल पे आना है क्या. तो दिस वाज द जोक. एस्केलेशन ये था. सेम थिंग वाज अबाउट गांजा, बट मुझे बहुत अच्छे से पता था कि इन दोनों में से किसी एक को यूज कर सकता हूँ बिकॉज दोनों सेम जोक है. गांजा यूज करने का मन था क्योंकि एक तो ये ऑलमोस्ट ट्रू था, प्लस गांजा इज मोर रिलेटेबल फॉर कॉलेज. मैंने पहले यही बोला था कि शिव जी मेरे सपने में आ गए. हाँ, मैं वही बोल रहा था. दैट्स अ स्टैंडर्ड कि शिव जी मेरे सपने में आ गए. मुझे पता नहीं मैंने 2 बार किया. माइल्ड लाफ एज यू वर पॉइंटिंग आउट, माइल्ड लाफ. आई वाज लाइक ये बहुत सिंपल बात है, कोई भी बोल लेगा. ठीक है. इससे ज्यादा फनी तो ओल्ड मॉन्क लग रहा है, बट प्रॉब्लम विद ओल्ड मॉन्क वाज कि ओल्ड मॉन्क से कम लोग रिलेट कर रहे थे. बिकॉज ओल्ड मॉन्क और शिव जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है जानने वाले लोगों में. ठीक है. तो एक 350 रुपए की दारू है, एक खुदा है. ठीक. तो मैंने कहा रखना तो मुझे यही है. ठीक है. Correct. This was a standard. I like the one liner which comes in, but this was an edit call, which is what I was getting to. जो राहुल दुआ से पूछा, जो राहुल दुआ ने सेलेक्ट की थी ये कर दो. Because usually आप जब stand up डालते हो तो लोग stand up देखते हैं, but here you knew that this is stand up for YouTube. So then you treat it in a certain way, which is why I really liked it. But the introduction of the song was also catchy. The editing was also done. It's pop color. Then it comes to it. Then it went to a bit. Now let's go into the anecdote. I mean your introduction. My name is Anubhav Singh Bassi and I am from a very civilized city.
मेरठ, नोएडा, हमारे यहाँ हो कभी? वहाँ आदमी जाता है, खबर आती है फिर। आदमी जाता है, खबर आती है। What does this line mean? It means कि मेरठ is one of the crime capitals of उत्तर प्रदेश. हाँ, ठीक है. correct है. मेरठ मुजफ्फरनगर, this belt is crime capital. So it means कि वहाँ पर अगर बंदा जाता है, so next day वो न्यूज़पेपर में आता है. That's the joke. आदमी जाता है, खबर आती है. Correct. Do you think you would have framed it a little differently? या फिर So improvise I किया had था this I had this entire set on Meerut, आपने? which had like 7-8 jokes, Meerut only. So जिस दिन मेरे मुंह से ये लाइन निकली स्टेज पे, so basically I was not prepared to say all this. I was hosting this show. मैंने मुश्किल से 1 मिनट होस्टिंग की है, वो भी ये बोल के कि सब चुप बैठना, कोई उठ के मत जाना, मेरी भी इज्जत है, ठीक है? And I started doing this. So अब यहाँ पर मैं सब कुछ इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है कि मैं कौन सी लाइन बोलने वाला हूँ जब तक मैं अपने सेट पे नहीं आऊंगा. तो ये सब मेरा वही चल रहा है. I'll get to a point where it becomes a little more specific, where I'm like, ये improvise किया हुआ energy लग रहा है, but it seemed like a nice line that came. प्रॉब्लम हो जाती है. And I belong to very civilized community also. जाट हूँ मैं. Thank you. मुझे पता चल गया था पहले उस पे कि they will guess. उन्होंने नोएडा गुड़गांव गेस किया था. Correct, तो इसलिए मैं मैंने जाट से पहले भी पॉज ले लिया था हाँ. कि गेस करने दो अभी हाँ, करने क्योंकि करेंगे तो अब ये फ्लो में आ जाएगा. Correct. उसके आपने ये भी किया. This seems to be improvised. The audience starts to guess but you let them guess, and the reaction is gratifying and not of surprise, which is why another oh came in. So sometimes I feel like I'm trying to understand the O culture, because अभी अगर यही सेम जोक अगर आप ऐसे जगह करो, comedians के सामने करो, तो comedians वो नहीं करेंगे. Comedians बोलेंगे ठीक है. अभी तो जोक ही नहीं आया कुछ. कॉमेडियन से भी लाइक कि जोक नहीं आया तो कर ना अभी कुछ कर. बट सी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एज ग्रुप इज 16 to 18 Correct. मैक्सिमम. Perfect recording group. Perfect If you're recording a comedy special, make sure 16 to 18 उससे ऊपर कोई ना है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी वाज मुझे नहीं जानते थे ये लोग. सो मैं एज अ होस्ट मुझे सबसे पहला काम था कि मैं जाके एक लवेबल कैरेक्टर बन जाऊं इनके लिए, ताकि ये मुझे सुन लें, बिकॉज मेरा सेट लंबा है. मुझे 16-17 मिनट, बिकॉज मैं वो हो चुका हूँ स्टेज से किसी और के सामने परफॉर्म करते हुए, ठीक है. तो मुझे पता था कि इन्हें पहले दिखाना पड़ेगा कि गाइस मैं भी बहुत सही, ठीक है. तो एक बच्चे ने कुछ बोला, मैंने कहा हाँ, तो वो बच्चा एकदम वो तो मेरा ही हो गया फिर. तो उसने कहा भैया कहीं नहीं जाएंगे. राहुल देव की ऑडियंस यही कर रही है. मेरी ऑडियंस होती तो ये ऐसा ये वाला हमने कोरियन हार्ट, यू नो द कोरियन हार्ट. And I am a lawyer by profession. वो कहते हैं कुछ नहीं करते, एलएलबी करते हैं. वो नहीं हूँ मैं. मैंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से किया. क्योंकि कोटा होता है ओबीसी नाम का. मेरे पास कोटा था. ये कोटा वाला is your first joke, no? Yeah, Because I'll tell you, वो standard like a very good joke is there कि जो नहीं करते हैं वो lawyer करते हैं, वैसा नहीं हूँ मैं. It's just context setting. Yeah. Because if you just take यहाँ the से joke first out joke also, I studied at NLU because वहाँ पे भी OBC कोटा था. Is a huge applause, which is why you got like a huge applause here. This is where your set starts. यहाँ से सेट स्टार्ट होता A minute and a half of opening, get me interested, Yeah. and now get into the set. है. अब मुझे पता था कि अब मैं रह सकता हूँ. ये कोटे के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? कोटा एडमिशन लेने के बाद नहीं चलता. जब मेरा एडमिशन 20 नंबर कम पे हुआ है, तो अंदर जाके पासिंग मार्क्स सबके सेम क्यों है? अंदर जाके पास ही नहीं हो जा रहा. The perspective that you gave in this joke is कि मैं OBC के थ्रू अंदर आया हूँ, तो मेरे पासिंग मार्क भी कम होने चाहिए, which is an absurd thought. But it's so funny. Only somebody who got in through quota would be like, sympathize करो यार. ठीक है, मतलब हमारा भी मार्क्स चलो 70 मार्क क्यों है, 40 में पास करो. 40 में पास करो. It was this is something that you used to discuss with group of friends कि this is just a thought you actually had when you were in college. Basically there was this guy in a college जो हॉस्टल में वो ऐसी ही बातें बोलता रहता था, तो उसे देख के रैंडमली एक बार कॉलेज में हमने ऐसे बोला था कि तेरे एक्चुअली कॉलेज में भी कम होने चाहिए थे मार्क्स. जस्ट अ थॉट. आप किसी के बारे में ऐसे सोचते हो, आपके कोई दोस्त है, तो हमारे दोस्त हुआ करता था कॉलेज में जो एग्जाम देने जब जा रहे हैं, मतलब हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, तब उसे याद आता था कि एग्जाम है, और फिर वो कहता था कि अरे यार वो करो. मैं कहता तेरे लिए टाइम थोड़ी ना बढ़ा देंगे, अब एग्जाम थोड़ी ना 4 घंटे का कर देंगे, अगर वो कम भी कर देंगे तो तू लेट ही आ रहा है. तो वो सब चीजें चलती रहती है. तो कुछ थॉट था कभी कहीं से, तो जस्ट एन absurd thought. Just an absurd thought because it's really funny because you flipped it. पूरी लाइन में आप नहीं पता लगा सकते कि ये प्रो है कि एंटी है. कुछ इसको मैं इतने बार बैक करके प्ले करके मैं
फक इट, जोक फनी है, आगे निकलो। ये शायद मुझसे मेहता ने भी बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा किसने बोला था कि ये क्या ये लॉयर जोक है कि समझ ही नहीं आ रहा कि है क्या ये, मतलब इसके साथ क्या दिक्कत है। बिल्कुल लॉयर वाला जोक है, कंफ्यूज कर रहे हो। पहले तो मैं कॉलेज पहुंचा, मुझे गांजा मिल गया, मैंने फूका, सेमेस्टर खत्म हो गया। वो बहुत सही चीज है। मैंने 6 महीने इतना फूका ना, 2 बार तो मैं शिव जी के सपने में आ गया। See your face when you're like, oh, इतना तो नहीं किल हो रहा था, बट ठीक है यार, ये 16-year-old तो बहुत ज्यादा अप्लॉज कर रहे हैं, दिख रहा है फेस पे हैप्पीनेस। एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि मैं अभी बता उसका प्रूफ भी है, अभी रिपीट करनी पड़ी लाइन, बिकॉज मुझे लगा अब तो ये खत्म होने वाला है अप्लॉज, तो मैंने अगली लाइन बोल दी थी, पर अप्लॉज खत्म नहीं, तो मुझे लाइन रिपीट करनी पड़ी। रियली एक बार सुनने दो तो। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा कि थोड़ा हमारे लिए भी छोड़ दो बस। ऐसा कॉमेडियन कभी लगता नहीं कि अबे मैंने कहा ये खत्म नहीं हुआ था क्या, एक सेकंड मुझे दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी। and you're like, और भी जोक है इसमें, how do I top this with a tag? Yeah. उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, अबे चुप रहो, सुनो मेरी बात, और मेरा जोक सुनो, चुप रहो। थोड़ा हमारे लिए भी छोड़ दो बस। दिस वाज द लाइन, मैंने बस एक बार स्टेज पे मेरे मुंह से निकल गई थी। हाँ, this one seems to be a improvised tag, वो होता है ना, वो वीडियो जब खत्म हो रहा है, जब वो सब्सक्राइब बटन है उसके अंदर जो टैग निकलता है। फिर एग्जाम्स आए, हाँ मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, ओबीसी से ओसीबी में दुनिया देख ली थी मैंने। Now here I feel you forgot that you had one more tag, उसलिए बोला अरे हाँ मजाक थोड़ा करो, which is a classic comedian trick कि like मेरे को जोक मिल गया, अपलॉज मिल गया, मैं और जोक जानना चाहता हूँ। And you're So like, basically मैंने पिछले शो में किया था ये, हाँ भूल गए थे। किल हुआ था, इसमें मैं भूल गया था। Then that's why you're like, अच्छा उन्होंने एक बंदी ने मुझे कुछ बोला था, तो मैंने बोला हाँ मजाक थोड़ी ना करो। जैसे ही मैं बोल रहा था मुझे याद है कि फक मैंने ये वाली लाइन नहीं बोली है, तो फिर मैंने लाइन बोली तो बहुत अच्छे सिमेट्री में से चला गया, अदरवाइज मैं बिल्कुल भूल गया था। Now we get into your examination narrative. एग्जाम साहब ने पहली बार एग्जाम दिए, हम सारे फेल हो गए, बस ओबीसी वाले, बाकी सब पास हो गए। हमें लगा डिस्क्रिमिनेशन है, उन्होंने कहा नहीं तुम चूती हो। हमने कहा क्या करना है, करे जाके पढ़ाई करो। हमने भाग, ये जैसे पता ही नहीं था हमें। ठीक है हम कर लेंगे कुछ। हम हॉस्टल पहुंचे, हमने जाके कमेटी बनाई, सारे ओबीसी इकट्ठे किए। हमारे ग्रुप में आधे नोएडा के गुज्जर, आधे मेरठ मुजफ्फरनगर के जाट, और 2-3 इस देश के कोनों से आए हुए लोग। सबने कमेटी बनाई कि अब से हम करेंगे चीटिंग। हाँ लेकिन हम करेंगे सामूहिक चीटिंग। मैंने एक ऐसा कर दिया है कि एक ग्रुप है जो ये बातें कर रहा है कि हमारा एडमिशन दोगे, आपका करना है। अच्छा, है ग्रुप या तो ये पहले हो चुका है, in that joke, up top joke. अब टॉप जो हो चुका है, तो ये उसी का कंटिन्यूएशन है कि माहौल कैसे बनेगा अब इसका। अगर मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि हमने ग्रुप बनाया, हम करेंगे सामूहिक चीटिंग, उसका वो माहौल नहीं बन रहा। माहौल नहीं बनता ना। तो मैंने डायरेक्टली करने की कोशिश करी है कई बार, फिर मुझे लगा कि नहीं, इसका थोड़ा वैसे बनाओ कि एक्चुअली तरस चुके हैं लड़के कुछ। सामूहिक चीटिंग पता क्या होता है? अब मैंने इस पूरे ऑडियंस को एक क्वेश्चन दे दिया, तो मैंने जितना टाइम गया था ना, वो तो उन्हें याद ही नहीं है कि मैंने कुछ टाइम खाया था। नाउ एवरीबडी इज गेसिंग इन देयर माइंड कि सामूहिक चीटिंग क्या होता है। सो एवरीबडी इज लाइक कि ग्रुप में सबके दिमाग में कुछ चल रहा है। दिस इज व्हाट आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी परफॉर्मेंस है मेरी। मेरे पास है जोक है, लेकिन ये माहौल ऐसे ही बनेगा कि मैं इसके दिमाग में कैसे घुसूं। मैंने पहले नोएडा के गुज्जर, मैंने मेरठ मुजफ्फरनगर के जाट, लोगों कोने से, बिकॉज अपॉर्चुनिटी था यहाँ पर। नोएडा के गुज्जर, मुजफ्फरनगर के जाट, थर्ड रूल ऑफ 3, देयर इज अ जोक पोटेंशियल देयर, इज व्हाट आई वुड बी थिंकिंग। बट उस टाइम पे आपने बोला 2 लोगों के कोनों से, ठीक है, आई मीन आई एम स्टिल इन द जोक। बेसिकली मुझे बताना ही नहीं है कि मुझे इसमें रूल ऑफ 3, मुझे जोक ही नहीं था ये। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि आई एम हिटिंग एवरी कॉलेज और इस देश के बाकी कोनों से आए हुए लोग, ठीक है। तो मैंने ओबीसीज कर लिए, ठीक है। बेसिकली मैंने इतना टाइम दे दिया, इफ यू कैन इमेजिन योरसेल्फ इन अ कॉलेज, तो तुम वो सोच सको कि तुम्हारे टाइम में कौन कौन लड़के वो हैं जो ये काम करेंगे। देयर इज नो गिल्ट, नो, यू फील वेरी हैप्पी डूइंग इट। नहीं, मैंने जानबूझ के करता हूँ इसमें, तो ये तो मेरा पूरा फॉर्मेट सेट था कि ये शांत रहेगा, अब यहाँ से ये एस्केलेट होना शुरू होगा। सामूहिक चीटिंग पता क्या होता है? मैं बताता हूँ। चीटिंग का सोर्स एक होगा, पास सारे हो जाएंगे। हमने क्या करा, हमने क्वेश्चन पेपर देखा अपना, मैंने कहा इसमें ना ट्रू फॉल्स आते हैं 20 नंबर के। मैंने कहा ये टीपने बस, पास हो जाएंगे। हमने प्लान बनाया, एक लड़के को टास्क दिया, हमने कहा एक काम करियो, आगे वाली कॉपी में से ट्रू फॉल्स देख लियो और बाथरूम के गेट के पीछे लिखाइयो। हम सारे एक एक करके जाएंगे, ट्रू फॉल्स देख के आ जाएंगे। सिंपल। पहले दिन ट्रू फॉल्स लिख के आया कि खुद ही मायूस खड़ा हुआ है।
हमने क्या हुआ, कह रहा वहां ना 1500 ट्रू फॉल्स लिखे हैं। मैंने कहा बेंच पहले से हो रहा है, हमारा यूनिक नहीं था। मैंने कहा एक काम कर, हमारे वाले ट्रू फॉल्स पे एक बॉक्स बना क्या। हाँ एक बॉक्स बना क्या, हमें पता चल जाएगा हमारा है। लिख के आया, आधे लौंडे अब भी फेल हो गए, क्योंकि जो लिख के आया ना इसकी हाइट है 6 फुट 4 इंच। ये महाशय यहाँ लिख के आ गए ट्रू फॉल्स, छोटे छोटे जा रहे, नीचे के 4 देख पा रहे बस, ऊपर के 6 में तुक्के मार रहे हैं। एक तो कमोड पर चढ़ के देख रहा था, उसमें गिर गया। इन्होंने आकर रिवॉल्व कर देकर हम नहीं खेलेंगे मेरा गेम, चेंज करो तुम ये। जब तक हमको चेंज करते, नेक्स्ट डे हमारे टीचर को ही पता चल गया, उसने एग्जाम में लिख दिया इफ ट्रू वाई। लॉन्डे उसमें भी लिख रहा है बिकॉज इट नॉट फॉल्स। वो 6 फुट 4 इंच में जोक आ गया। इट्स अ गुड थॉट कि वो फ्लिप कर दिया एक्सपेक्टेशन को, कि बॉक्स बना के है एंड बॉक्स भी ऊपर है। उसके बाद आपने 3 टैग्स मारे कि नीचे के 4 दिख रहे हैं, छोटों को कुछ दिख नहीं रहा है, एक कमोड में चढ़ गया, एक कमोड से नीचे गिर गया। ये तीनों टैग्स आपने इम्प्रोवाइज किया ऑन द डे ऑफ द शो, कि आपको पता था कि ये एग्जांपल्स मुझे देने पड़ेंगे कि वो जोक थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए। नीचे के 4 को नहीं दिख रहा है, वहां तक सेम था, बिकॉज मुझे किसी को अपने ग्रुप में अगेंस्ट करना था अंडरस्टूड कि कल कुछ और प्लान करेंगे, तो वहां तक तो था, लेकिन वो कमोड में गिर गया, वो जस्ट ऐड ऑन वहां पे ऐड ऑन था। बिकॉज उसके बाद आया आपका नेक्स्ट जोक व्हिच इज द स्ट्रॉन्गर जोक, कि टीचर को हमारा गेम पता चल गया, उन्होंने पूछा कि व्हाई इफ ट्रू व्हाई। ठीक है, सो फार रियलाइज ये तो नया जोक आ गया। उसके अंदर से था बिकॉज इट्स नॉट फॉल्स। इट्स सो सिंपल, लाइक नाक के नीचे वाला जोक है कि अरे यार ये तो मैं भी सोच सकता था। व्हाट अ ग्रेट, लाइक अ सिंपल ऑब्जर्वेशन बट इट्स सो फनी, लाइक अ वेरी साइनफेल्डिश काइंड ऑफ अ थिंग। वो ऐसे वाले ऑब्जर्वेशन उठा के डाल देते हैं। दिस वाज अ वेरी क्लासिक सेट फॉर मी, जिसके अंदर एक गुड एंडिंग हुआ। ये इंस्टाग्राम में एक अलग सा क्लिप बन के जा सकता है, इज व्हाट आई फेल्ट। देन यू गो इनटू एक्ट 2 ऑफ दैट स्टोरी। अब प्लान किया कि कोई दरवाजे पे लिखेगा यार, थोड़ा स्मार्ट। हमने डिसाइड किया कागज पे लिखेंगे, और एक कागज वॉशरूम में लड़का छिपा के आ जाएगा। फिर 1 घंटे बाद जब टीचर को नहीं पता चलेगा, तब एक लड़का जाएगा, कागज लेके आएगा, सबको पास कर देगा। सिंपल। अब जो कागज लेने गया था ना, उसे दुनिया की सेफेस्ट जगह मिली, पेन की कैप। उसने पेन की कैप में फर्रा देके पेन बंद कर दिया, पेन से फर्रा फंस गया। ये अपनी सीट पे बैठ के टक 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 कर रहा है, फर्रा ही बाहर नहीं आ रहा। हम इसे कह रहे फर्रा पास कर, तो पेन की कैप दे रहा। क्लास में पेन की कैप घूम रही है। थोड़ी देर में टीचर को कैप मिल गई, वो कैप का पेन ढूंढ रहा है, और जिसका पेन था ना, इसने पेन फेंक दिया। ये चूतिया बिना पेन के बैठा है, खाली हाथ। टीचर आया, कह रहा तेरा ही पेन है, कह रहा मैं तो पेन लाया नहीं। ये नाम कैसे लिखा है, कह रहा ये आगे वाले से मांगा था। आगे वाले ने पेन मुझसे मांगा, कह रहा तो आप ही का पेन है, पहचान नहीं पा रहे हो। टीचर कह रहा बेटा चीटिंग लगी तो इस पे तो गया आज, कह रहा ऐसे नहीं लगती चीटिंग, इतना कानून मैं भी जानता हूं। कानून का ही पेपर है, जानता है तो लिख दे। कह रहा लिख तो दूबर पेन नहीं है ना। लाइन इज कि तू लॉजिक मारेगा, मैं लॉजिक मारूंगा, तू लॉजिक मारेगा, मैं लॉजिक मारूंगा, तू लॉजिक मारेगा, आई विन द लॉजिकल आर्गुमेंट। दिस एंटायर बिट हैज लाफ आफ्टर लाफ आफ्टर लाफ आफ्टर लाफ आफ्टर लाफ। इसके अंदर कोई सेटअप पंच लाइन नहीं है, बस कन्वर्सेशन है वो। ये मैंने लिखा पूरा, ये मतलब डायलॉग की तरह लिखा है। डायलॉग की तरह। दैट्स व्हाट आई वाज गोना आस्क, कि एवरी सेकंड लाइन इज एन आंसर टू योर फर्स्ट लाइन। मतलब टीचर ने बोला, उसका पंच लाइन क्या बोलेगा, उसका पंच लाइन क्या बोलेगा, उसका पंच। ये आपने लिखा था। और कितने बार चेंज हुए थे ये वाला पार्ट? 35-40 35-40 माइक्स पे जाके चेंज हुआ। और Perfect हो गया था। और कितना चेंज हुआ फ्रॉम द फर्स्ट? छोटा छोटा चलता रहा है, मतलब इसमें लाइंस ऐड ऑन हुई हैं। पहला जो वही था कि वो बिना पेन के बैठा है, करेक्ट, वो तो है। तो उसने कहा कि नाम कैसे लिखा है फिर ये, कि सर ये मैंने पेन आगे वाले से मांगा था। वो पेन मेरे से मांगा हाँ। था। दिस बिकेम योर एक्ट 2। नाउ कम्स एक्ट 3 वेयर यू इंट्रोड्यूस एक बंदा जो छोड़ के निकल गया। इसका एक दोस्त बैठा वहां, उसे ये भी नहीं पता है वो क्या रहा है। वहां से हाथ उठा के रहा, सर मेरी कैप है। कह रहा यहाँ कैसे आ गई है? कह रहा मैंने फेंक दी थी। कह रहा हमने तो नहीं देखा। कह रहा तो पकड़े जाने के पर्पस से फेंकी भी नहीं थी।
टीचर घूम के गया इसकी सीट पे जाके इसका पेन उठाया, कैप उठाई, कह रहा बेटा ये तो इसकी कैप ही नहीं है, तो इसमें टाइट है। कह रहा तभी तो फर्रा फंस गया। टीचर ने कैप लिया, वो अपनी सीट पे जाके टक 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 कर रहा, फर्रा अभी भी नहीं निकला। टीचर ने कैप तोड़ी, फर्रा निकाला, उस पर लिखा 4 ट्रू है 6 फॉल्स। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, बस बताओ है कौन ये? ले कर लो चीटिंग। यार की स्टोरी बेसिकली जब मैं वो कन्वर्सेशन लिख रहा था तो पता नहीं लिखते लिखते मुझे रात को लिखने के बाद मैं लेटा हुआ था, तब मेरे दिमाग में ये वाली लाइन आई, पकड़े जाने के पर्पज से फेंकी भी नहीं थी। अनदर आर्गुमेंट। तो मैं अब टीचर जीत रहा है कि यहाँ कैसे आगे स्टूडेंट जीत रहा है कि पकड़े जाने के पर्पज से नहीं फेंकी थी। तो टीचर वाज लाइक कि रुक जा, अभी देखता हूँ मैं। जब मैं यहाँ तक लिख रहा था तब मेरा पर्पज था कि टीचर इसे निकालेगा और फिर वो हैंडराइटिंग मैच करेगा। नाउ दिस एंटायर बिट बहुत लंबी हो रही है। अब ये एग्जैजरेशन का हद लेवल जा रहा है। मुझे एक दिन मैंने ऐसे ही रैंडमली, मुझे बहुत ही बेकार लगता है ये 4 ट्रू 6 फॉल्स, ठीक है। मुझे मतलब ऐसा लगता था कि ये तो बहुत ही सिली सी बात है। फिर मुझे लगा कि मैं इतनी इंटेलिजेंट बात तो वैसे भी नहीं करता हूँ। तो मैंने जब बोला 4 ट्रू 6 फॉल्स, किल हुआ। एक बार किल हुआ, 2 बार किल हुआ, 3 बार किल हुआ, हर बार किल हो रहा है। तो फिर मुझे बाकी कमेडियन से पूछना पड़ा। मैंने कहा इधर एक सेकंड, मैंने कहा ये बहुत ही चूते बात तो नहीं है जो मैं बोल रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है। मैंने कहा तो ठीक है फिर रख लेते हैं। तो मैंने फिर रखा। That's how you kept it. And because for me the 4 true है 6 false है was just a joke primer. The joke here is लोग कर लो चीटिंग, अब कर लो चीटिंग। तो वो फिर मुझे कवर करने के लिए करना पड़ा है लास्ट में आके। Oh really? For me that was the funniest part. इसमें भी joke end है और उसका tag is where I got the funny part of it. So इस वीडियो को शूट कराने से जस्ट पहले मैंने मोबाइल पे ये शूट किया था। अच्छा तो जब मैं उसे रात को देख रहा था ना, मैंने कहा बस ये यहाँ नहीं हो सकता बंद, ठीक है। तो जिस दिन मैं ये शूट कर रहा था, इससे पहले भी वाले शो में भी, इससे पिछले दिन भी मैंने एक बार जब परफॉर्म किया था, तो मैंने वहां ये तब से बोलना शुरू किया, लास्ट के 4 माइक्स से, बस 2 ये शोज, 2 इससे पहले माइक्स, टोटल 4 बार ये बोला है कि लोकल लो चीटिंग। अब ये यहाँ क्लोज हो जाएगा। Yeah, was a full close, right? So that's why I was like, this is a joke primer. एक्चुअली कई बार आपके साथ ये होता है कि ऑडियो जब आप सुनते हो ना तो आपको इतना ज्यादा पता नहीं चलता नहीं है। चलता, जब आप वीडियो देखते हो ना तो आपको पता चलता है कि नहीं ये बिल्कुल क्लोज नहीं हो रहा है यहाँ पे। स्टैंड अप कॉमेडी विजुअल मीडियम है, तो जब आप अपने आप को स्क्रीन पे देखते हो ना तो थोड़ा अजीब लगता है। सो ऑलरेडी वाचिंग इट विद अ डिस्गस्ट, सो उस डिस्गस्ट में जब आप देखोगे यू बी लाइक how do I make myself like myself? Then you're like कुछ तो करना पड़ेगा। Then you're thinking कि that uncomfortable feeling of you know कि कितना वाहियात लग रहा हूँ मैं, then you'll really pressurize yourself. ऑडियो में ना आप कुछ भी साफ कर सकते हो, सुन भी रहे हो, आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं है, दिमाग कहीं नहीं जा सकता। Exactly. So that's why always record your set visually because of visual medium. And I guess this is very NLU Lucknow. And this is how the students are. I also used to say this line in this particular set that from very first semester, law schools के जो बच्चे हैं वो अपने आप को lawyer समझने लगते हैं और वो टीचर्स को डिसरेस्पेक्ट करने लगता है। But then I removed that line because मैं नहीं चाहता था कि कोई ऐसा करने लग जाए। तो मतलब obviously disrespect मत करो। लेकिन उन्हीं उसी टाइम हमारी क्लास में था अब्दुल ओबीसी की लिस्ट में लास्ट था। इसे कोई उम्मीद नहीं थी दुनिया से, ये जी चुका था जिंदगी, इसका हो गया था। ये आया कह रहा कि यार देखो ऐसा है, मैं तो ना पढ़ पाता हूँ ना चीटिंग कर पाता हूँ, तो मैं ना क्लास को डिस्टर्ब कर दूंगा। क्यों? कह रहा देखो जब मैं डिस्टर्ब करूंगा तो टीचर मेरे पास आ जाएगा, तुम सब पीछे से चीटिंग कर लेना। हम सब में एक सैक्रिफाइस भी कर रहा है। मैंने कहा ठीक है। एग्जाम शुरू हुआ है, पहली सीट पे बैठा है, टीचर की तरफ देख के अपना हाथ देख के लिख रहा है। हाथ पे लिखा नहीं इसका कुछ, ये बस बकचोदी कर रहा है। जैसे टीचर ने इसकी तरफ देखा हाथ बंद कर लिया, टीचर इसकी तरफ आया हाथ पीछे कर लिया। और इस टाइम पे हमें चीटिंग करनी है, हम अब्दुल को देख रहे हैं। मजा इतना आ रहा था, हाथ ही नहीं खोल रहा। टीचर सर पे खड़ा हो गया, हाथ खोल कर नहीं खोलूंगा। कह रहा अच्छा एक सेकंड खोल रहा हूँ। अल्लाह रहीम। टीचर की तशरीफ फट गई, पागलों की तरह घूम रहा है। क्या हुआ है ये ट्रू स्टोरी है। ये बंदा है, ओह माय गॉड क्या जीनियस है बंदा। इसके अंदर इतनी absurd स्टोरी है रे। इसके अंदर जो अपलॉज आपको मिला है, पहला अपलॉज मिला है इस स्टोरी में कि हम लोगों को चीटिंग करनी चाहिए, तो बस हम सब अब्दुल को देख रहे हैं। बिकॉज़ आई वाज लाइक ओह या फक ट्रू, वो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी बना रहा है। देन वुश एंड द वुश जो किया वो भी मैजिकल था। So I got a huge laugh there. जब तक मैं इस पे आ रहा था ना वो बहुत लंबा हो जा रहा था।
सो उस बीच मुझे एक इंसिडेंट सोचना पड़ा कि मैं क्या सोच सकता हूँ. देन आई इमेजिन द होल क्लासरूम. उसके बाद मुझे लगा कि ये भी तो बहुत फनी है कि हम सब उसे देख रहे हैं, हम कुछ लिख नहीं रहे. सो मैंने कहा ठीक है इसको ऐसे करके देखते हैं. तो वो क्लिक हो गया. तो वहां मुझे पहला अप्लॉज मिला. मैंने कहा अभी यहाँ पे अगर ये अप्लॉज ब्रेक है तो फिर ये बहुत बड़ा फटने वाला है. मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत लंबा और परफॉर्म करते करते लग रहा है कि मैं इस बात पे आ रहा हूँ लेकिन ये लंबा हो रहा है. मुझे यहाँ मिल रहा है अप्लॉज ब्रेक, बट मुझे अप्लॉज ब्रेक नहीं चाहिए. मुझे यहाँ खत्म एग्जैक्टली ऐसे पे तो अप्लॉज ब्रेक ही मिलेगा, बट ये ऐसे पे जाऊंगा तो फिर बहुत ऊंचा. ओह सो फुल मोमेंटम चेक किया. कह रहा नेक्स्ट प्लान बहुत सही है. क्या कह रहा ऐसा प्लान है पेपर कैंसिल हो जाए. मैंने कहा कर दे यार प्लीज. क्या प्लान है. कह रहा देखो 10 से 1 का पेपर है, 12:05 पे मैं खांसूंगा, तुम सब अपनी टेबल हिलाने लगना. ये ग्रेजुएशन में हो रहा है. हमने कहा उससे क्या होगा. कह रहा टीचर को लगा भूकंप है, वो कहेगा भागो, तो अपनी आंसर शीट लेकर भाग जाएंगे, पेपर कैंसिल. मैंने कहा फकिंग जीनियस. अगले दिन एग्जाम में 12 बजे तक किसी ने कुछ नहीं लिखा है. कैंसिल होने वाला था, 12:05 पे खांसा, हम सब अपनी टेबल हिला रहे. टीचर ने बाहर जाने को बोला ही नहीं, और इसने हमें ये नहीं बताया रुकना कब है. अब अगर अलग अलग टाइम पर रुके तो भूकंप खराब हो जाएगा. ये सिग्नल देके खांस रहे हैं, और तेज हिला रहे. टीचर ने आगे वाली रो को घूरा, ये रुक गए. पीछे वाले अभी भी हिला रहे हैं. टीचर घूरता चला गया, सब रुकते चले गए. तो लास्ट सीट पे बैठा था, खड़ा हुआ, कह रहा सर भूकंप आया था. वो ऐसे करके निकल गया. टीचर कह रहा इधर आइयो, चमन चूती है. अगली बार भूकंप आए ना तो सब बता दियो कि टीचर्स टेबल भी हिलानी होती है. माय फेवरेट पार्ट इज 2 जोक्स. एक जोक इज कॉल्ड स्टेट द ऑब्वियस, जब आप बोल रहे थे कि मैं हिलाऊंगा, एंड देन यू ब्रोक द फोर्थ वॉल की सब ग्रेजुएशन हो रहा है बाय द वे. सो फार यू टेलिंग एवरीवन अ स्टोरी, देन यू लाइक बाय द वे ग्रेजुएशन हो रहा है. लाइक द अब्सर्डिटी, दिस silliness is happening. I found that really funny. And again, the best thing was वो पूरा टेंशन जो आपने स्टोरी का क्रिएट किया, पूरा टेंशन सब है. Everyone's like, this is a foolproof plan. The audience is with you. And then you're like, but ये टीचर का टेबल. Now, टीचर का टेबल भी हिलाना होता है. It's really funny. Did you have this closing in the beginning या फिर कर करके closing आया? This was the only joke I had when I started writing cheating. Really? ये भूकंप वाला फुल जोक? बस ये वाला जोक था सबसे पहले. एक जो मैं स्टेज पे लेके चढ़ा था पहली बार, वो सिर्फ एक भूकंप वाला जोक था. मुझे स्टेज पे चढ़ने से पहले लगा था कि 6 मिनट का जोक होगा. मैं 6 मिनट की पूरी स्टोरी सुनाऊंगा, मैं 3-4 कैरेक्टर बताऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा. मैंने 4 बार ट्राई किया, 3 मिनट से ऊपर जा ही नहीं रहा. मैं अप्लॉज ब्रेक पे खत्म कर रहा हूँ लेकिन 3 मिनट से ऊपर जा ही नहीं रहा है. मुझे लग रहा है कि बीच में क्या लाफ ला दूं मैं. मैं टीचर का कैरेक्टर डालूं तो कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है. करेक्ट. फिर मैं ये कर रहा हूँ. हाँ. मैं इस हद तक आ गया उस जोक को लिखने में कि मैंने ये लिख करने लगे हैं. नहीं, मैंने अर्थक्वेक वेव्स में है ये एक्सप्लेन कर दिया है जोक में कि वो पहली रो से आखिरी में गया तो वेव की तरह निकल गया. इस जोक को लेके चीटिंग सेट लिखा था, बट देन आई रियलाइज कि बस ये करना तो है, पर इसे करने के लिए मैंने 10 मिनट के जोक लिखे. इस जोक को करने के लिए मैन, दिस इज सच अ कॉमेडियन कनंड्रम. हम लोगों को अगर एक जोक पसंद आ गया ना, उसको स्टेज पे लाने के लिए हम एक स्पेशल लिख देंगे, बट वो जोक अपने को करना है. दिस इज द जोक स्टार्टेड इट ऑल. सो ये भूकंप वाला वाज द फर्स्ट जोक. उसके ऊपर से आपने ऐसे बाकी सारे डाले. फिर चीटिंग का बोला कि थोड़ा चीटिंग कॉन्टेक्स्ट कर देते हैं, चल थोड़ा इंट्रोडक्शन कर देते हैं, पूरा फिर ओबीसी ले आते हैं, फिर वो गांजा वाला जोक कर लेते हैं, सब कुछ. दिस इज इनक्रेडिबल, व्हिच इज अनदर बिग लर्निंग. कि क्या होता है कि समटाइम्स वी राइट अ सेट कि वो सेट वायरल चलेगा, तो हम सेट लिखना शुरू कर देते हैं, बट उसमें जोक नहीं होता. जब तक कि फनी जोक नहीं है ना, उसके अराउंड कुछ नहीं लिख पाते हो. सो अनलेस यू आर पैशनेट अबाउट अ जोक, उसके ऊपर जोक लिखो. इफ यू राइट ऑन अ सेटअप, probably you won't have a funny punchline, but if you have a punchline, उसके अराउंड जो आप वीव करोगे, वो 300 ओपन माइक में, 500 ओपन माइक में करके जो 12 मिनट का दिखेगा, that's why it's 32 million. That's why I said कि this is the biggest learning, क्योंकि मुझे ये लाइन बाय लाइन बनाना पड़ा ताकि मैं ये बोल सकूं कि टीचर्स टेबल भी हिलानी पड़ती. What a great learning. Have a passionate funny punchline that you want to do on stage. उसके ऊपर तुम लिखो स्टेज पे करो. जब मिल जाएगा ना, जब शूट का डेडलाइन है, ऑटोमेटिकली हो जाता है. This is really fun. Thank you Basti for coming on the show.
I'm so happy. This has been an incredible learning. Awesome, man. Thank you so much. Thank you so much for मिलते having हैं. me, man. Thank Shall you. see you. Happy Thank you. Holi. Happy Holi. Bye. Next Take year care. Holi to you. हम होली पे शूट कर रहे हैं. Yeah. And cut.